Hello students of class 12th, I welcome you in today's English literature lecture. Today we will continue the poem My Heaven written by Sri Rabindranath Tagore. Today we will study the second part of it. Now in the second part we will take the poem and its meaning. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Now children, its translation. अब इस कविता में कवि कहना क्या चाह रहे हैं? प्रस्तुत कविता भगवान से प्रार्थना है, यानी कवि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रेरणादायक कविता में हम कवि का भारत तथा उसकी संस्कृति के प्रति प्रेम देखते हैं। तो इस कविता के माध्यम से पता चलता है कि श्री रविन्द्रनाथ टैगोर अपने देश भारतवर्ष और उसकी संस्कृति के प्रति कितना प्रेम करते थे और वो चाहते थे कि बाकी देशवासी भी वैसे ही प्रेम करें। तो कविता का अर्थ इस प्रकार है, क्योंकि वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो कहते हैं, हे ईश्वर, मेरे स्वप्नों का भारत इस प्रकार का हो, जहाँ लोग भय मुक्त हों और सिर ऊंचा रहे, अर्थात लोग आत्मसम्मान तथा निर्भयता से रहें। ज्ञान पर कोई प्रतिबंध न हो, जहाँ संसार मानव समाज जाति, धर्म तथा भाषा के कारण भिन्न भिन्न वर्गों में न बटा हो, जहाँ शब्द सत्य की गहराई से निकलते हों, अर्थात लोग सत्य बोलते हों, जहाँ पर पूर्णता की प्राप्ति हेतु लगातार प्रयास किए जाते हों, जहाँ लोग तर्क की स्वच्छ धारा को छोड़कर पुरानी आदतों के नीरस मरुस्थल की बालू में न खो गए हों, अर्थात जहाँ लोग पुराने रीति रिवाज के आदी न हों तथा तर्क के आधार पर नवीन विचारों को स्वीकार करने के इच्छुक हों, जहाँ मस्तिष्क ईश्वर के वरद हस्त यानी प्रेरणा से सदैव विकसित विचार तथा कार्य की ओर अग्रसर होता हो। हे पिता यानी ईश्वर, मेरे देश को इस प्रकार का स्वतंत्रता रूपी वरदान प्राप्त हो, अर्थात मेरा देश इस प्रकार की पूर्ण प्रगति करे। अब देखिए बच्चों, ये दोनों ये पूरा जो स्टैंजा है उसमें आपको बताया गया है कि लेखक किस प्रकार का देश चाहता है, क्योंकि जिस समय ये कविता लिखी गई है उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था और
रविंद्रनाथ जी भी बाकी भारतवासियों की तरह आज़ादी की कल्पना कर रहे थे। अब थोड़ा सा appreciation of the poem. My Heaven is one of the best known poems of Tagore. It is an extract from his famous book The Gitanjali. ये जो गीतांजलि पुस्तक है इसी के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और उसी में की ये एक कविता है, My Heaven. The book won for the poem the famous Nobel Prize for Literature in 1913. It is an inspiring poem which draws the picture of an ideal country, such as the poet would like his India to be. The poem was written much before the independence of India. The poem is an expression of the poet's lofty concept of freedom. Freedom not only political but also economic, social, intellectual. It is a prose poem. However, its language and rhythm are so melodious that it can be called a very fine specimen of poetic composition. The poem contains a number of beautiful metaphors such as narrow domestic walls, tireless striving stretches its arms, dreary desert, sand of dead habit, and heaven of freedom. चलिए बच्चों, इसकी अब ग्लॉसरी देख लेते हैं, यानी हार्ड वर्ड्स. हेड इज हेल्ड हाई. Man can live in dignity without fear, यानी प्रतिष्ठा पूर्वक रहना. Knowledge is free. Everybody is entitled to free education. World, human society. Fragments, small pieces. Narrow domestic walls. Internal divisions on account of color, caste, creed, and language. Depth of truth, sincerity and truthfulness. Tireless striving, constant effort, stretches its arms, is always directed towards perfection, highest point of achievement. Stream of reason, rational thinking. Dreary desert sand of dead habit. Conservation which makes people unprogressive. The God, ever widening thought, constant dynamism and progressiveness, and action, thought and action. Heaven of freedom, where freedom and happiness exist together. Father, God, awake, rise from a long sleep of slavery. तो ये थे बच्चों ग्लॉसरी आपकी. अब आइए आप अपने एक्सरसाइज पे. राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई हेवन. राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. तो एप्रिसिएशन आप ना भी करें तो चलेगा, सेंट्रल आइडिया आप केवल लिखें. पिछले क्लास में यानी सैटरडे को मैंने ऑलरेडी आपको माय हेवन का सेंट्रल आइडिया आपके ग्रुप में डाल दिया है. उसको ध्यान से पढ़िए और अपने कॉपी में लिखिए. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. पहला है वेयर द क्लियर स्ट्रीम टू कंट्री अवेक. दूसरा है वेयर द माइंड से लेकर के वॉल्स तक. ये दोनों रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन भी डे बिफोर यस्टरडे मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया है. प्लीज़ उसे चेक करें, देखें और उसको समझें, पढ़ें और अच्छी तरह से अपनी क्लास और कॉपी में नोट कर लें.
तो आज के लिए इतना ही बस बच्चों, ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के लेक्चर्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू चिल्ड्रन।